what do I do, etc. A little brief on that before we actually get into learning things about how I actually do all of this, right? By the way, in the picture in the middle here, this is me, and this is something I shot myself. I actually did not burn my hair doing this, so but yeah, that is something that I try. So yeah, I'll start off with who am I? Existential question for sure, but I am a graduate from IIT Roorkee. I graduated last year, and it's been 1 year since I've been working. I'm an engineer, of course, and it's been 1 year since I have been working as a product manager at Razorpay. That's what I do full time. That's what I actually do to make a living. And apart from that, right, I try to make content. I try to click pictures. I try to make videos. Anything to basically express myself, tell stories through my pictures, my videos, or anything on that lines. But it was not always like this. I had this passion, or I thought ki, yes, I'm going to click pictures and these pictures are actually going to look good. That was not always the case. मतलब मेरे को हमेशा नहीं लगता था कि यार, मेरे को लगता था कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो कि शायद जिसमें आर्टिस्टिक चीज नहीं है, मतलब मैं आर्ट नहीं कर सकता हूँ, मतलब स्पेशली probably who are familiar with how engineering का journey is that in our 11th and 12th, even 10th 8th, तब से ही in some families तो it's like कि नहीं पढ़ना है, कि जेई करना है, कॉलेज जाना है, either for JEE, either for medical or anything else. The schooling system in India is कि यार ठीक है 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ना है. तो that was not the time when I actually explored कि यार मेरे को कुछ आर्ट करना है. 2016 was the time जब मैं कॉलेज में एंटर किया था, जुलाई 2016 to be precise. And कॉलेज में एडमिशन मिला, and I asked my parents कि यार नया फोन लेना है. Now that was the time when actually smartphones with better cameras were actually starting to get a little more there. कि phones में अच्छे cameras थे, you can actually click pictures straight out of the phone, जो कि सही लगता था. तो 2016 कॉलेज में गया, फोन मिला, एंड फिर आई एम फ्रॉम जयपुर, तो मैं जयपुर में किसी एक फोर्ट गया था, एंड आई एम लाइक यार कुछ तो खींचते हैं, फोन है उसमें कैमरा है तो कुछ तो खींचना है. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वही करते हैं कि हमारे पास फोन है एंड वी ट्राई टू क्लिक समथिंग आउट ऑफ इट. तो कुछ तो खींचा था, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई आई क्लिक्ड इट लाइक दिस, मतलब कुछ आइडिया तो नहीं था तब, मतलब कि क्या खींचना है, कैसे खींचना है. बट फ्रॉम 2016, 2 years later, when I actually learned something, the same place, it's the same fort in Jaipur, but it went from looking like this to this. I'll show a couple of pictures of where I went, and then I'll show you the tricks behind it. Similarly, so this is my college, IIT Roorkee, and again this is something I clicked in my first year from the same phone. I was like यार ठीक है, मतलब अच्छा है, खींचते हैं, क्योंकि इट्स लाइक कि फोन है, खींचना है. But the same place, 4 years apart, it's also clicked from a phone, by the way. So camera nahi use kiya hai, but still your phone is pretty capable. That is what the probably the lesson is here, ki the same phone or the similar budget ka phone, but you can click better pictures from it as well. Same place, my college, and again little transformation in 3 years. Dogs, right? Who does not love dogs? But then the quality of pictures that I could click of dogs again increased as I learned new things about my hobby. As I discovered ki yaar, okay, photography is something that I actually like, and that I actually want to learn more about. And one thing that I would say is ki whatever be your hobby is, be it photography, be it dancing, anything else, the more you practice, the more you will get better at it. Matlab, practice is the key. Ki anything you like, if you like it, you'll practice it more and more, and फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार आप कुछ काम कर रहे हो. It's like a relaxing time for you in a way. Okay. Trips, right? काफी लोग पहाड़ों में जाना किसको पसंद नहीं है. I think every one of us likes going to the mountains, and पहाड़ों में जाके तो अच्छी फोटो कैसे नहीं आती है. But this is something I clicked in 2017, and 1 year apart, this is a picture I clicked in Himachal, and this is what 1 year of practice can also make to your pictures. I who does not like clicking pictures of themselves? I also did. मैं कुछ experiments भी करता था, but then these experiments were always not very nice looking. But then again, experiment, and then again I continued doing experiments even with my own pictures, and this is something that I turned out with after a few years of practice. And yes, the fire is real, आग असली थी, but I would not recommend anyone doing this without safety precautions, because
my dad was there and वो मेरे को बोलते कि भाई क्या कर रहा है तू जला लेगा, but then he is the one who clicked this with me directing him कि यार ऐसे पकड़ो और बस खींच दो, just ऐसा I set it everything in the camera, I gave the camera to him, मैंने बोला पकड़ो पापा और अब बस बटन दबा देना जब मैं बोलूँ, and that is how this picture turned out. मैं थोड़ा सेफ्टी लिया ताकि पानी वानी था पास में, but still it's risky, so I would not suggest anyone trying this right out of their first few experiments. So yeah, but I have shown you यार also again मीत ने जैसे बोला था कि let's keep this session very interactive, कुछ भी doubt हो बीच में just raise your hand or put it in the comments and then I'll try to address those questions. I think I think let's keep it a little more interactive so that कहीं पे कुछ भी मिस हो रहा हो तो those questions can be addressed. Awesome. तो यार बट कैसे स्टार्ट हुआ, राइट? तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि यार आई स्टार्टेड ऑफ एवरीथिंग विद द फोन. तो जो तीनों फोटोज हैं तीनों मैंने फोन से ली थी स्टार्टिंग में 2016 में जब मैं कॉलेज गया था कि यार ठीक है फोन है अब फोटो तो खींचते हैं. मुझे पता था कि मेरे को फोटो खींचना नहीं आता है, मुझे ये क्लियर था कि यार मेरे को फोटो खींचना नहीं आता है और मुझसे नहीं होगा, बट आई वाज लाइक यार ठीक है अब खींचते तो हैं, जरूरी थोड़ी अच्छी आएगी. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, राइट? पर फिर मेरे को एक्सेलरेशन मिला इस चीज के लिए कि यार मेरे को लगा कि नहीं आई शुड ट्राई दिस मोर विद द फैक्ट कि especially college and friends, right? Ki one of my friend had a camera and then we went on a trip to Himachal. This was the first time I was actually seeing snow. मैंने आज तक कभी snow नहीं देखा था and मैं पहली बार जा रहा था, तो I was like यार कैमरा किसी फ्रेंड का ऐसे मांग के उधार लेके टाइप कि यार कैमरा दे दो, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, आई वांट टू क्लिक गुड पिक्चर, मेरे को अच्छी फोटो खींचनी है तो आप मेरे को कैमरा दे दो. And that is the trip when I clicked the most pictures. Now that does not mean कि यार आपको कैमरा ही चाहिए फोटो खींचने के लिए. मैंने कैमरा से भी बहुत सारा फोटोज खींचा, मैंने फोन से भी खींचा, बट देन दैट वाज द टाइम जब मेरे को लगा कि यार हाँ शायद फोटोज खींचना चाहिए. मे बी बिकॉज वो जगह भी इतनी सुंदर थी कि अपने आप में कुछ भी खींचा था और वो अच्छा ही लग रहा था. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, बट दैट वाज द टाइम जब मैंने फोटो खींचना शुरू किया. बट अगेन एज आई मेंशन्ड कि यार प्रैक्टिस इन एनीथिंग दैट यू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया इवन आफ्टर दैट ट्रिप, फोन से, कैमरा से, कॉलेज में हर जगह कोई भी इवेंट हो रहा होता मैं हमेशा फोटो खींचता था. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. बट दैट डज नॉट मीन कि एंड मैंने काफी सारी नई चीजें सीखी. मतलब इट वाज लाइक कि यार वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है. आई थिंक तो बेसिकली कि मैं दिल्ली में था थोड़े टाइम के लिए, तो मैंने कुछ नई चीजें ट्राई की जहाँ पे तो बेसिकली यू कैन सी कि यहाँ पे रेड फोर्ट है एंड 500 के नोट के पीछे भी रेड फोर्ट होता है. तो हाउ कैन यू यूज इमेजिन कि यार यहाँ पे क्या चीज अच्छी लगेगी. मतलब यू कैन यूज न्यू आइडियाज या जो भी कि हाउ कैन यू मिक्स दैट टू मेक समथिंग गुड. अगेन मतलब कुछ और चीजें ट्राई की. मैंने म्यूजिक कॉन्सर्ट शूट किए. डॉग्स काफी इजी तो नहीं बोलूंगा खींचना, बट काफी क्यूट लगते हैं कुछ भी खींचो डॉग्स का या पेट्स का इन जनरल. तो ये स्ट्रीट डॉग्स थे, मेरे को कहीं तो पुणे में मिले थे, बट दे लुक क्यूट नो मैटर कितना भी नए हो आप प्रोबेबली फोटोग्राफी में. I got a camera after 5-6 months of practicing on my mobile and a friend's camera or something like that. Then मेरे को लगा कि यार कैमरा लेना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि यार कैमरा लेते हैं फिर फोटोग्राफी सीखेंगे, which is not true. स्पेशली आजकल जबकि हर फोन में इतना अच्छा कैमरा है, मतलब आप 10-12 हजार का फोन भी लोगे कोई भी, उसके अंदर भी आजकल इतने कैमरा है, 3 कैमरा आते हैं यार फोन में. मतलब तो इट्स वेरी इजी टू गेट वेरी क्रिएटिव विद व्हाट यू हैव इन योर फोन, ऐसा 10-15 हजार के बजट में भी. तो दैट इज वाई ओनली गेट अ कैमरा ओनली इफ यू आर श्योर कि यार मेरे को फोटोग्राफी करनी है, आई लाइक फोटोग्राफी, एंड आपको उतना इन्वेस्टमेंट वर्थ इट हो. मतलब 35,000 में आप कैमरा लोगे 35-40,000 का, इट्स बेटर दैट यू गेट अ फोन प्रोबेबली 20,000 के आसपास. कैन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दैट. टू गिव यू एन एग्जांपल, ऑल ऑफ दीज 5 पिक्चर्स दैट यू सी हियर, एक बार आप ध्यान से देखने स्लाइड को, आई विल स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल. ये 5 फोटोज एंड बहुत सारी और फोटोज जो मैंने खींची हैं, all these 5 photos I clicked on my phone itself. Did not use any camera for this. मैंने फोन से खींचा है और फोन इन अ वे काफी बेटर है फोटोज खींचने के लिए. मतलब आप हमेशा इतना बड़ा कैमरा लेके ट्रैवल नहीं कर सकते. कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फोटो है ये वाली जो अगर आपको दिख रही है, ये फोटो मैं कुछ तो ग्रोसरी लेने गया था और मैं रास्ते में साइड में फुटपाथ के साइड से मैंने कुछ फोटो खींचा क्योंकि स्काई बहुत अच्छा था. अब उस केस में मेरे पास कैमरा नहीं होता, मेरे पास कोई DSLR या कुछ नहीं होता क्योंकि मैं ऐसे ग्रोसरी लेने कैमरा लेके थोड़ी जाऊंगा. तो उस केस में योर फोन इज द बेस्ट कैमरा दैट यू हैव. आपके पास जिस टाइम पे जो कैमरा अवेलेबल है दैट इज द बेस्ट कैमरा. मतलब अगर यहाँ पे बस फोन के DSLR होता तो भी शायद फोटो आई जाती, पर थोड़ी डिफरेंट आती, शायद हल्की सी बेटर होती. बट अगर मैं कैमरा नहीं होने की वजह से नहीं खींचता तो मेरे पास वो फोटो ही नहीं होती. एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी 5 ऑफ दीज पिक्चर्स कि फोन से फोटोग्राफी सबसे ईजी है और आप कभी भी कर सकते हो.
तो दैट इज वाई फोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारे पास. काफी सारे लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार नहीं यार मेरे पास तो फोन है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है तो उससे नहीं आएगा, विच इज नॉट ट्रू, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो फोटो है, ये वाला फोटो मैंने Redmi Note 3 से खींचा था. Redmi Note 3 अपने टाइम पे 10,000 तो कुछ ऐसा ब्रिलियंट फोन नहीं, वाज अ डिसेंट एंट्री लेवल स्मार्टफोन. आई थिंक उतना फोन आई थिंक मोस्टली सबके पास होता है आजकल, एक स्मार्टफोन जिसमें कैमरा है और सिंगल कैमरा उसमें. तो दैट इज द लेसन हियर कि जो कैमरा है, जो मोबाइल फोन है, स्टार्ट विद दैट एंड फॉलो सम बेसिक्स. जो हम बेसिक चीजें नहीं सीखते ना अबाउट अ कैमरा, अपन लोग को अपने मोबाइल कैमरा का पोटेंशियल नहीं पता है, हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें मिसिंग है जो कि हमें पता होनी चाहिए, विच आई स्टार्ट ऑफ विद नाउ. नाउ स्टार्ट ऑफ विद कि क्या बेसिक्स है जो कि हम मिस कर जाते हैं. अभी तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट दैट वी कैन डिस्कस? या गाइस, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट इन द चैट. Awesome. I think अभी तक तो I don't see any questions in the chat itself when you start telling the tricks, dude. Okay, yes, I'm starting off with the tricks now. I think Harsha question है कि when will I start with the tricks? Yes. Yeah, तो I'll start off with very basic things first कि keep the photo straight. कि अगर आप कोई भी फोटो खींच रहे हो, like कभी-कभी मैंने देखा है even कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स करते हैं कि यार वो फोटो ना ऐसे 45 डिग्री पे खींचते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो पोर्ट्रेट खींचा 45 डिग्री पे, दैट इज अ क्रिएटिव थिंग इन इटसेल्फ. बट लेट्स से आप एक जैसे इस एग्जांपल के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यार एक लेक है और पीछे फॉरेस्ट है. अब पहली वाली फोटो थोड़ी सी टेढ़ी है जिसमें वो लेक और जो होराइजन पता है ना कि बेसिकली जहां पे अगर आप दूर तक देखोगे तो जहां पे आपको लगता है कि यार जो जमीन है, जो आपका अर्थ है, वो स्काई से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द होराइजन. तो जो भी आपके फोटो का होराइजन है जो कि मतलब लेवल है ग्राउंड का, वो शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट. कि इस केस में लेक है, अब लेक तो स्ट्रेट लाइन पे है इस केस में, तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. मतलब बहुत ही इजी तरीका है फोटो को बेटर लगाने का. लाइक अगर पहली और दूसरी फोटो में आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार पहली फोटो थोड़ी सी टेढ़ी है. वो शायद इतना इजीली ऑब्जर्व नहीं होता है, बट वो सबकॉन्शियस में आपको दिख जाएगा कि यार वो फोटो हल्की सी इम्परफेक्ट है, कि यार कुछ तो ऑफ है इस फोटो के बारे में. तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार फोन व्हेनेवर यू आर क्लिकिंग ना, ट्राई टू कीप फोन एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा रखो फोन को, एंड देन ओनली यू ट्राई टू क्लिक अ पिक्चर. कि देयर इज अ सॉल्यूशन टू फिक्स इट एडिटिंग में भी, कि एडिटिंग में आप हल्की सी फोटो को रोटेट कर दो, ऑफ कोर्स वो भी एक ऑप्शन है. बट द फर्स्ट थिंग इज कि जब आप फोन से खींच रहे हो, बिकॉज हमेशा आप एडिट नहीं करोगे, देन ट्राई कि फोटो द फोन शुड बी स्ट्रेट एंड फोटो स्ट्रेट आनी चाहिए. सेम थिंग लेट्स से आप बिल्डिंग का फोटो खींच रहे हो, वो बिल्डिंग का फोटो अगर टेढ़ा है, अगर बिल्डिंग फोटो में टेढ़ी लग रही है, अगेन वो फोटो थोड़ी सी वियर्ड लगेगी क्योंकि बिल्डिंग सीधी होती है ना, मतलब एक्सेप्शन हटा दो, 99% केसेस में बिल्डिंग सीधी होती है और फोटो में सीधी दिखनी चाहिए, तभी वो फोटो बेटर लगेगी. तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बट सबसे ज्यादा मिस हो जाती है जो कि इनिशियली जब लोग स्टार्ट करते हैं कि यार हमारी फोटो सीधी नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट चीज बहुत ही इजी चीज है, अगेन सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या है बेसिकली? आई स्टार्ट ऑफ विद सिमेट्री. वर्ड अपने आप में क्या क्या मीनिंग होता है. पहली वाली फोटो लेते हैं. अब इसमें अगर मैं एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो आप, अगर मैं यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब मैं एकदम सीधा तो नहीं कर पाऊंगा माउस से, बट एकदम अगर मैं सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि प्लेन के भी अगर सेंटर से लाइन जा रही है तो प्लेन लेफ्ट में जितना है उतना ही राइट में है, कि वो प्लेन एग्जैक्ट है. सेम चीज विद बिल्डिंग, कि बिल्डिंग जो चीज लेफ्ट में है एग्जैक्ट चीज राइट में है, राइट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्री, कि जो चीज लेफ्ट में है वही चीज राइट में, अगर मैं एक सेंटर से लाइन बना दूं तो इसलिए फोटो सिमेट्रिक है. और दैट इज वाई ये फोटो अपने आप में, अगर आप इसको देखोगे पहली बार में तो आपको लगेगा कि यार कितनी वेल फ्रेम्ड है, कि कितनी एकदम एक्यूरेट फोटो है ये. जबकि अगर मैं सेकंड फोटो देखूं, ऑल्दो सेकंड फोटो भी काफी अच्छी है, बट इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कि अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करूंगा तो लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और है. तो अगर आप दोनों फोटोज को अपने आप में कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार फर्स्ट फोटो थोड़ी बेटर दिख रही है, क्योंकि अगेन उसमें एक सिमेट्री है. वो आईज, अगेन मतलब वो माइंड सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें नोट करता है. अब उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड करके अगर आप फोटो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार कुछ तो बेटर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं इस फोटो को लूं और इस फोटो में सिमेट्री लगाऊं, तो अगर आप ये ग्रीन वाली लाइन देखोगे तो इसमें ऊपर जो है इन वे नीचे भी वही है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है वाटर में. तो जो पेड़ ऊपर है वही पेड़ नीचे है. तो सिंस इट्स अ लिटिल सिमेट्रिक, तो फोटो का लुक अपने आप में थोड़ा बेटर हो जाता है. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि फोटो हमें, कि जो सिमेट्री हमेशा सेंटर से जाएगी,
मतलब जैसे इस केस में वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, फर्स्ट केस में वो ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रही है। सिमेट्री किसी भी तरीके से हो सकती है, बट इट शुड बी कि फोटो में यूनिफॉर्मिटी कैसे आ रही है। इस फोटो में नहीं आ रही यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये जैसे मैंने हवा महल का फोटो लिया था, तो अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो चीज यहाँ पे है, जैसे अगर आपको ये देख लोगे तो जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी आ रही है। स्काई जो है वो स्काई अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है, बट जो बिल्डिंग है, क्योंकि स्काई सिमेट्रिक होना काफी डिफिकल्ट है, राइट। बट जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग अपने आप में सिमेट्रिक है, हवा महल अपने आप में सिमेट्रिक है, इसलिए वो सिमेट्री दिख रही है उसमें। देन उसके बाद जो ये वाला फोटो है, इस केस में ये केव्स का फोटो है कोई तो। एंड देन यार ये स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो प्लीज, मतलब मैं दिखा नहीं पाऊंगा फोटो, लोग देख नहीं पाएंगे, तो फायदा हेलो क्या है मतलब। guys, who is drawing? Please don't do this or else I'll kick you off this session. Don't बीच में ऐसे डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो यार। हाउ टू क्लिक फोटो वर्टिकल। Who was the guy? नाम देखा था क्या? यार पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब ध्यान तो नहीं दिया था। ठीक है चल, कोई बात नहीं, आई थिंक वी कैन रिमूव दिस एंड वी कैन गो अहेड। Yeah. ठीक है awesome। तो यार वही मतलब सेम चीज केव्स का फोटो, कि जो चीज लेफ्ट में अगेन इस केव्स में जो पैटर्न है वो सेम चीज आ रहे हैं सेंटर से। अगर आप लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो अगेन सिमेट्रिक है, और फोटो अपने आप में थोड़ा सा प्लीजिंग सा लुक देती है, थोड़ा सा फुलफिलिंग सा लुक देती है। ऑलराइट यार, ये एनोटेशन हटाना पड़ेगा एक्चुअली। Just a second. ठीक है डन। Done. Right. Great. ठीक है। देन आई थिंक दिस इज अ लिटिल मोर टेक्निकल, इस पर अपन थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली नाउ आई थिंक कुछ लोगों ने अपने फोन में देखा होगा कि फोन में ग्रिड का ऑप्शन आता है। किसी ने देखा है? रेज योर हैंड, जैसे ही कैमरा जिसका ऑन है। ग्रिड्स देखा है किसी ने? ऐसी लाइंस देखी है कैमरा में? यस आई सी अ लॉट ऑफ हैंड्स रेजिंग। ठीक है, Great. नाइस नाइस नाइस। यस यस यस, काफी सारे लोग हैं, ऑसम। ठीक है, तो बेसिकली कैमरा में भी ग्रिड्स का ऑप्शन होता है, एंड ये क्यों है, ठीक है, आई टेल यू। इस रूल की वजह से, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल रूल ऑफ फोटोग्राफी, जो कि यू नो कोई भी फोटोग्राफर अगर बताएगा तो इससे स्टार्ट करता ही है। तो यार इसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। अब रूल ऑफ थर्ड्स क्यों बोलते हैं, आई टेल यू। ग्रिड्स क्यों है, आई टेल यू, ठीक है। एक अदर तो बेसिकली एक अदर काम जो इस ग्रिड का आप कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था कि फोटो को स्ट्रेट रखना है, तो यू कैन यूज दीज ग्रिड्स टू मेक श्योर कि जो आपका होराइजन है, जो आपकी लाइन जा रही है, जो आपका ग्राउंड लेवल है, वो सीधा हो। तो अभी ग्रिड से आप उसको अलाइन भी कर सकते हो। पहला यूज ऑफ दिस ग्रिड इज कि आप अपनी फोटो को स्ट्रेट रख सकते हो। फोटो स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्ट्रेट मतलब कि सीधी रहेगी ऑफ कोर्स। तो फोटो स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसके लिए आप ये ग्रिड्स को यूज कर सकते हो। वेरी फंडामेंटल यूज ऑफ दिस। बट व्हाट इज द टेक्निकल यूज ऑफ दिस, कि टेक्निकली क्यों देते हैं ग्रिड्स? क्योंकि यार रूल ऑफ थर्ड्स के लिए। अब रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है कि जो आपका फ्रेम है उसके अंदर आप दो लाइंस ऊपर से नीचे बनाओ, वर्टिकली बनाओ, दो लाइंस हॉरिजॉन्टली बनाओ कि भाई साइड से जा रही है, ऐसे फ्लैट जा रही है, ठीक है, जो कि आपको इस एग्जांपल में भी दिख रही है। नाउ अगर आप लेट से किसी का पोर्ट्रेट फोटो खींच रहे हो, जैसे कि आपको ये फर्स्ट फोटो दिख रहा है किसी लड़की का, तो इस केस में अगर जो आपका सब्जेक्ट है, फोटो में सब्जेक्ट क्या होता है जिसकी आप फोटो खींच रहे हो, कि भाई लेट से आप मेरी फोटो खींच रहा है, तो मैं, और मतलब लेट से कि जो मेरा वीडियो दिख रहा है आपको, ये फोटो खींच रहा है कोई, तो इस केस में मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट है, और जो ये पीछे मेरा रूम है ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अब इस केस में जब आप फोटो ले रहे हो, तो जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो किसी लाइन पे लाई करता है, तो देन आपका जो अटेंशन है उस फोटो में वो सब्जेक्ट पे ज्यादा जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स मतलब कि बेसिकली यू डिवाइड द फोटो इनटू सेक्शंस, कि यार 3 सेक्शन में आपने फोटो को डिवाइड कर दिया है। नाउ वन ऑफ दी, तो जब आपने 3 फोटो में सेक्शन में डिवाइड किया, तो देयर आर 2 लाइंस जो उस फोटो को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही है। नाउ एनीथिंग जो कि उस 2 लाइन पे लाई कर रहा है, उस पे ज्यादा अटेंशन जाएगा। हॉरिजॉन्टली भी मतलब आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, और वर्टिकली भी जो आपका ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में आपके सब्जेक्ट पे ज्यादा टेंशन जाएगा, और जो इन लाइंस का मीटिंग पॉइंट होता है, जैसे इसमें ड्रॉ कर रखा है, वो जो पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा टेंशन गैदर करता है आपका किसी भी फोटो में। अब वो ये पॉइंट भी सकता है, वो ये पॉइंट भी सकता है, और वो ये पॉइंट भी सकता है, वो ये पॉइंट भी सकता है, ठीक है। चारों पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा अटेंशन गैदरिंग पॉइंट्स होते हैं आपकी फोटो में। तो अब इस लड़की की जो आंख है ये इस पॉइंट पे आ रही है, तो अगर ये लाइन नहीं होती तो आपका सबसे ज्यादा अटेंशन जो है वो इस लड़की की आंख पे जाता, जो कि हमारा उसका फेस जो है बेसिकली,
तो फेस में भी सबसे ज्यादा अटेंशन जनरली आईज पे जाता है, राइट? तो उस लड़की के फेस पे सबसे ज्यादा अटेंशन जाता अगर ये ग्रिड्स नहीं होते तो। ग्रिड्स बेसिकली एग्जांपल के लिए बनाए हुए अभी यहाँ पे। तो फाइनली रूल ऑफ थर्ड्स का कंक्लूजन क्या है कि आप फोटो को 2 लाइंस वर्टिकली 2 लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे, तो जो मीटिंग पॉइंट्स होता है वो सबसे ज्यादा टेंशन लेता है, एंड जो भी सब्जेक्ट है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है वो सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा टेंशन जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल देखे तो यार इस केस में भी देखो, ये जो बच्ची है ये इस लाइन पे लाई कर रही है और उसका जो फेस है, जो हेड है, वो डॉट के पास आ रहा है, तो यानी अगेन उस केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा। अगेन जो एक और फोटो है कि यार वुल्फ की फोटो है, तो वुल्फ एक नीचे वाले जो डॉट है उसके ऊपर ये वुल्फ लाई करके उसका हेड भी उसी के आसपास है, तो अगेन इस फोटो में सबसे ज्यादा टेंशन उसका वहीं पर ही जाएगा। अब लेट्स से यार इस वुल्फ को मैं उठा के यहाँ पे एक कोने में रख देता तो उतना टेंशन नहीं जाता। उस वुल्फ को मैं अगर सेंटर में कर देता तो शायद वुल्फ पे आपको लगेगा कि टेंशन ज्यादा चल रहा है अगर वो सेंटर में होती तो, बट विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि फिर जो आपका ग्राउंड है वो ग्राउंड बहुत ज्यादा होता, आपका ये आइस कम हो जाता, फिर आपका स्काई कम हो जाता, तो फोटो का बैलेंस खराब हो जाता है इन जनरल। तो दैट इज वाई ये रूल डिफाइन किया हुआ है, एंड यू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ इट जितना आप ऐसा चीजों को ऑब्जर्व करोगे। जैसे लेट से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, तो अभी अगर आप देखोगे तो अगर आप हाइपोथेटिकली आप इमेजिन करो लाइन इसी फैशन में मेरी स्क्रीन के ऊपर है, तो अब जो मेरा फेस है, जो मेरी बॉडी है, वो एक लाइन पे जा रही है जो यहाँ से जाएगी, एक और लाइन है जो प्रोबेबली यहाँ से जा रही होगी, मतलब ऐसे कहीं, अब सीधी नहीं आएगी हाथ से बट ऐसे कहीं जाएगी, तो मैं एक लाइन पे लाई कर रहा हूँ। अब अगर मैं लेट से थोड़ा सा और मूव हो जाता हूँ एंड मैं इस लाइन से बाहर चला जाता हूँ, यार ये ऐसा कुछ है, तो अब लाइन कहीं यहाँ से जा रही होगी बट मैं लाइन के थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ, तो अब आपका मेरे ऊपर अटेंशन उतना ज्यादा नहीं जाएगा सर जितना कि इंग्लिश अगर सर yes 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 sorry so now your attention मतलब won't go on me that much अगर I am away from that line. Now if I go close to that line again, now you'll see that I am again in the attention of this particular space. Now when I look at the camera and I am approximately at that line, now you'll see ki now I actually fill the frame, now I am actually dominating this whole photo, this whole frame in a way. But again, if I move, let's say, to the middle, then the frame is probably not that well balanced. There is some space here and some space here. But if I again move to that line, now you see that I am able to fill that whole frame with the presence of the subject, and the most attention that will go to the subject जो frame में है. Make sense? I know this is a little complicated. If you have any doubts, कोई भी doubts हो, तो please ask. I see some questions on, can you suggest good phone good for photography below 30,000? I'll cover doubts on phones and at the end. gears Yeah, a little, Kritagya, a little you at the can end. cover these doubts at the end. Meanwhile, Okay. अभी जो कृतज्ञ ने explain किया इस पे anyone has any doubts? Rule of thirds पे? Okay, someone is asking, while clicking a portrait, shouldn't the person be in the center? Shouldn't be center. Yeah, see, so basically what rules in photography are, right? कि जो भी एक creative field है, ठीक है, जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसमें जनरली यू सी की कुछ रूल्स और गुड टू हैव थिंग्स होती हैं. नाउ देयर कैन बी एक्सेप्शंस टू दैट एज वेल. ठीक है, नाउ लेट्स से कि ये सेम फोटो, लाइक अगेन लेट्स से कि ये सेम फोटो है, बट नाउ इफ दिस मॉडल वाज इन द सेंटर, राइट, तो वो मॉडल सामने देख रही है बट उसकी जो बॉडी है वो सामने की तरफ फेस कर रही है. ठीक है, कि जो उसकी बॉडी है वो सामने की तरफ फेस कर रही है, लाइक इस तरफ, बट वो देख कैमरा में रही है. तो नाउ इन दिस केस अगर वो सेंटर में होती तो देन जो एरिया उसके पीछे है, द एरिया बिहाइंड हर इन द फोटो, दैट वुड हैव लुक्ड अ लिटिल टू एम्प्टी, क्योंकि उसकी बॉडी तो आगे फेस कर रही है, राइट, बट वो देख सामने रही है. तो इन दिस केस शी हैज टू बी ऑन द रूल ऑफ थर्ड वाला लाइन. बट लेट्स से कि हर बॉडी इज फेसिंग टुवर्ड्स द कैमरा एंड उसका फेस भी कैमरा को फेस कर रहा है, कि जैसे इन दिस केस now I'm looking at the camera and I'm in the center. Now this frame will look good, but now let's say if I move to this side and I look there, क्योंकि basically so I'm looking there because there's a monitor and मेरे को videos दिख रहे हैं सबके. So now if I look there, now it makes sense for me to be on line of thirds. It's not necessarily true कि हमेशा line of thirds पे रहना है या हमेशा center में रहना है. It depends on कैसे टाइप का फोटो खींचे हो. मतलब मेरे पास थोड़ा और एग्जांपल है जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में डाले नहीं है, बट इफ यू गो ओवर टू माय इंस्टाग्राम,
यू विल सी सम पोर्ट्रेट जो मैंने खींचा जिसमें सब्जेक्ट इज इन द सेंटर, बट उस केस में सब्जेक्ट इज का बॉडी इज लुकिंग एट द कैमरा एंड उसका फेस भी कैमरा को देख रहा है। नाउ जो मैंने एग्जांपल दिया है इस केस में, क्योंकि उसकी बॉडी सामने की तरफ फेस्ड है, मतलब इस तरफ, एंड उसका फेस कैमरा को देख रहा है, अगर वो सेंटर में होती तो उसका पीछे वाला स्पेस जो है वो एम्प्टी लगता है, ऐसा लगता है कि यार आगे जगह कम है फोटो में और पीछे जगह ज्यादा हो गई है फोटो में। तो इट डिपेंड्स, लाइक अगेन इन दिस केस इफ यू लुक, तो ये जो लड़की है शी इज लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई थिंक आई यूज द एनोटेशन, अब मैं खुद भी यूज करना, वो भी यूज करना चाहिए, आई यूज ड्रॉ, ठीक है। तो बेसिकली नाउ इफ यू लुक एट इट, ये लड़की इस डायरेक्शन में देख रही है, राइट। नाउ अगर ये लड़की सेंटर में होती यहाँ पे कहीं पे, एंड तब वो यहाँ पे देख रही होती, तो जो ये वाला पार्ट ऑफ द फ्रेम है ना, हाँ, तो जो ये वाला पार्ट ऑफ द फ्रेम है, तब ये वाला पार्ट ऑफ द फ्रेम बहुत ज्यादा एम्प्टी लगता है, क्योंकि अभी तो वो इतना ही है, बट इस केस में वो वाला फ्रेम, अरे कहाँ गया नोटेशन, हाँ, इस वाले केस में द फ्रेम वुड हैव बीन दिस मच एम्प्टी, और उसके आगे भी उतनी स्पेस होती। ऑल्दो यू वुड फील कि यार दिस इज अ लिटिल मोर सिमेट्रिक, बट जब भी कोई आपका जो सब्जेक्ट है फोटो में, इट्स लुकिंग एट सम डायरेक्शन इन द फोटो विच इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द कैमरा, कि वो कैमरा के अलावा कहीं और देख रहा है, उस केस में हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स पे रखना इज बेटर कंपेयर टू सेंटर में रखना, क्योंकि अगेन योर फोटो वुड नॉट बी बैलेंस्ड, कि इस तरफ कुछ ज्यादा है इस तरफ कुछ कम है, आपको वाला फीलिंग आएगा फोटो में। अगेन अब ये जो वुल्फ वाला केस है, वुल्फ इस डायरेक्शन में देख रहा है, इसीलिए हमने उसको ये वाली लाइन पे रखा है। अगर वो वुल्फ इस डायरेक्शन में देख रहा होता तो हम वुल्फ को इस वाली लाइन पे रखते प्रोबेबली, गेट इट। मतलब ये वाला रूल का मैंने इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज मेरे को लगा कि फर्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट दिस इज गुड टू अंडरस्टैंड, राइट, कि अब ये जो लड़की की बॉडी है ये इस डायरेक्शन में फेस कर रही है, इसीलिए हमने उसको इस वाली लाइन पे रखा है। अगर वो इस डायरेक्शन में ही देख रही होती और हम उसको इस वाली लाइन पे रखते, तो देन आपको लगता कि यार ये वाला पार्ट ऑफ द फ्रेम जो है वो खाली खाली है। आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल, कि जैसे अब इस केस में आई एम हियर एंड मैं वहां देख रहा हूँ, बट लेट्स से मैं इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ और मैं इस वाली लाइन पे हूँ अब लेकिन मैं वहां देख रहा हूँ। नाउ डोंट यू फील कि मेरे पीछे स्पेस बहुत खाली है, कि भाई मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, आपको वीडियो से दिख ही नहीं रहा कि मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मतलब मैं हल्का सा हाथ भी अगर निकाल रहा हूँ तो इट्स गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम, which does not explain anything कि मैं किस तरफ देख रहा हूँ। If you look at this wolf का picture, you see कि he is looking in this direction जहाँ पे ice है, तो he is looking at that view कि भाई वहाँ पे water है और ice है और वो कुछ तो horizon पे देख रहा है। But इस केस में जब मैं यहाँ पे हूँ तो आपको फ्रेम के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। It does not explain you anything कि what you are looking at, what the subject is looking at basically. Great कृतज्ञ, so हम आगे बढ़ सकते हैं. That was a really great explanation. ठीक है, awesome. कुछ और doubts that I can address here? Understood, thanks. We have to keep grades while clicking picture. Yes, श्रद्धा ने सही बोला. We have to keep grades while clicking pictures. Awesome. Great. बाकी questions हम end of the session में लेंगे, guys. So, great. Yeah. Awesome. Yeah. Now again, portraits की line पे there is some very basic thing. मतलब इसका कुछ नाम तो नहीं है, but it is just general observation. कि लेट्स से अगर आप ये वाली फोटो देखो, तेरा उस केस में एक पोल है जो कि उसके पीछे है, प्रोबेबली जो भी लेडी की फोटो खींच रहे हैं उसके पीछे पोल है, बट अब इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके सर में से निकल रहा है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी कॉमनली इन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, मेरी फोटोज में भी हुआ है। मतलब इनिशियली तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा होता था कि यार पीछे से ऐसा कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का पोल निकल रहा है या देयर इज अ ट्री, एंड देन इट फील्स लाइक यार इट्स कमिंग आउट ऑफ देयर हेड, वो सर से निकल रहा है जबकि वो पीछे था। तो दिस इज अ वेरी बेसिक मिस्टेक क्लिकिंग पोर्ट्रेट्स। मतलब नाउ व्हेन आई से पोर्ट्रेट्स इट कुड बी एनीथिंग, कि यार आप अपने फ्रेंड की फोटो खींच रहे हो, अपने भाई बहन की, फ्रेंड की, मम्मी पापा की, किसी की भी फोटो खींच रहे हो, किसी भी इंसान की या पेट, एनीथिंग, दिस मिस्टेक कैन हैपन एनीवेयर। कि यार ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिस चीज की आप फोटो खींच रहे हो उसके अंदर से कुछ और पार्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है। वेरी कॉमन थिंग कि इस चीजों का ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू क्लिकिंग अ पिक्चर, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आपका सब्जेक्ट जो है वो सही दिख रहा है ना बैकग्राउंड के हिसाब से, कि बैकग्राउंड में कुछ और तो नहीं है। अगेन अनदर एग्जांपल, कि यार इस अंकल के सर पे ऐसा लग रहा है कि छाता निकल रहा है पीछे से कुछ, तो मतलब वियर्ड सा। तो ट्राई कि यू नो चेंज द एंगल, कि आप थोड़ा सा हिला लो अपने, जिसकी आप फोटो खींचो उसको बोलो क्या थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ या कुछ भी हो जाओ। वेरी गुड एग्जांपल कि क्या हो सकता है इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द बैकग्राउंड एज वेल, कि जिसकी आप फोटो खींच रहे हो वो तो अच्छा दिखना ही चाहिए। कि भाई लेट्स से मतलब जो आपका फ्रेंड है जिसका फोटो खींच रहे हो वो हंस रहा है सही से, वो बढ़िया दिख रहा है, बट उसके पीछे सर पे से पोल निकल रहा है, तो अगेन वो फोटो खराब हो जाएगा अपने आप में, राइट। Another very good example that I want to use this picture for is कि यार now if you look at this picture ना, अब आपको ये तो दिख रहा है कि उनका ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ तो आपको दिख रहा है उनका,
बट अब ऐसा लग रहा है कि उनका दूसरा हाथ है ही नहीं शायद, क्योंकि वो फोटो में नहीं दिख रहा ना। तो मतलब उससे वो फोटो ना, जो जिस जिस इंसान की आप फोटो खींच रहे हो, वो फोटो थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है कि लेट्स यार वो जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो वहां पे फ्रेम में प्रेजेंट है। कि अब इस केस में यार लेट्स से वो वाला हाथ अगर वो हल्का सा आगे ले आती तो उनका वो वाला हाथ भी दिख जाता, बट अब वो हाथ हल्का सा ऐसे कर ली तो अब ऐसा लग रहा है कि यार उनका हाथ नहीं है शायद, वहां पे कुछ तो मिसिंग है वहां से। तो हल्का सा उनको बोलो कि यार हाथ मूव कर ले, कि जो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि शायद जो कि दिखना चाहिए उस फ्रेम में, अगर आपने वो हल्का सा चेंज कर लिया वो नहीं दिख रहा है, तो देन इट लुक्स लाइक यार सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट देयर व्हिच शुड बी। अब वो कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा डायरेक्टली, बट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑफ ऑन द फोटो कि यार उस इंसान का फोटो कंप्लीट नहीं है, इट्स नॉट अ कंप्लीट पिक्चर इन इटसेल्फ अगर यू कांट सी इट इन द फोटो। दैट्स द लेसन कि पे अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स इन योर बैकग्राउंड या इन योर फोटो इन जनरल, कि जिसकी फोटो खींचो अच्छा दिख रहा है सही है, बट जो पूरी फोटो में आ रहा है वो क्या सब सही है। पे अटेंशन टू दोस स्मॉल डिटेल्स एज वेल। ऑलराइट, ऑसम। एनी डाउट्स? ओके, Yeah, someone is asking, can you explain a bit about product photography? I'll try to cover the types of photography in end. I Right. am not exactly sure if we'll have time. That is, I have not included in the slides. But since it's come exactly for product photography, I'll cover. Okay. Right. A very small thing again. Now I have taken example of a portrait again, but this can apply to anything. Like even let's say you're clicking product photography, या फिर आप किसी पेट का फोटो खींच रहे हो, या फिर आप किसी बिल्डिंग का भी फोटो खींच रहे हो फॉर एग्जांपल। इट्स इजियर इन केस ऑफ कि आप किसी प्रोडक्ट का फोटो खींच रहे हो, किसी ह्यूमन का फोटो खींच रहे हो कंपेयर टू आप नेचर का फोटो खींच रहे हो, इज कि इन द फर्स्ट फोटो यू सी कि यार उसके ऊपर काफी सारा धूप आ रहा है इन ऑन योर सब्जेक्ट। लेट्स से यू लुक एट हर लेग एंड यहाँ पे यू सी लाइट के स्पॉट्स ऑन हर फेस, यू सी कि कहीं पे लाइट है कहीं पे शैडो है। तो इनकंसिस्टेंट लाइट स्पेशली दिन के टाइम में व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट, बहुत ज्यादा धूप है, शेड पड़ रहा है, कि जैसे पेड़ का जो शेड होता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है राइट, कि कहीं पे लाइट आएगी कहीं पे नहीं आएगी, क्योंकि पत्ते जैसे हैं उस हिसाब से लाइट का पैटर्न रहेगा। बट इन दैट केस व्हाट कैन यू डू, यार मूव अ लिटिल जहां पे धूप नहीं पड़ रही हो ना डायरेक्टली। लाइक फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में बहुत ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी तो इसीलिए दिख रहा है कि यार वो इनकंसिस्टेंट है, कि कहीं पे तो बिल्कुल हाथ देखो, जैसे अब यहाँ पे देखोगे तो हाथ एकदम ऐसा लग रहा है गायब हो गया है। अब फेस का ये वाला पार्ट सही से एक्सपोज्ड है, बट यहाँ वाला फेस के पार्ट में ऐसा लग रहा है कि यार एकदम स्किन एकदम ब्राइट येलो हो गई है। बट नाउ जो सब्जेक्ट है वो मूव हो गया थोड़ी सी ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड है, तो नाउ यू सी कि यार उसके फेस पे भी सही लाइट आ रही है, उसके हाथ पे भी सही लाइट आ रही है, उसके पैरों पे भी सही लाइट आ रही है, और ओवरऑल पिक्चर में लाइट सही है। बैकग्राउंड में अभी भी यू सी कि यार लाइट थोड़ी सी खराब हो रही है, बट एटलीस्ट योर सब्जेक्ट जिसकी आप फोटो खींच रहे हो उसकी फोटो सही आ रही है। नाउ सेम चीज कैन बी एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। लेट्स से आपने कुछ एक नया चॉकलेट खरीदी है, वेरी बेसिक एग्जांपल। नाउ आपको चॉकलेट की फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालनी है कि यार मैंने चॉकलेट खरीदी है, ये तो बढ़िया कुछ से महंगी वाली चॉकलेट है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना है स्टोरी। अगर आप धूप में जाके फोटो खींचोगे तो कहीं पे लाइट आएगी प्रोबेबली, तो उसका शायद नाम उड़ जाए, नाम ही नहीं दिखेगा, या फिर आपका कहीं पर उसका कुछ तो डायग्राम बना हुआ है, कुछ तो आर्ट बना हुआ है चॉकलेट पे, वो उड़ गया तो अच्छा नहीं लगेगा राइट। दैट इज वाई हल्का सा मूव हो जाओ जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो, जहां पे थोड़ा सा शेड आ रहा हो, तो फोटो आपकी ओवरऑल अपने आप बेटर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन जो कि जनरली लोग पूछते हैं कि लोग आर्ट बनाते हैं, लोग ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, लोग पेंटिंग बनाते हैं, लोग उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ठीक है। अब उस केस में भी लोग बोलते हैं कि यार अच्छी फोटो नहीं आती। अगेन अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में जाके फोटो खींचोगे तो वो एक तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगी फोटो अपने आप में, प्लस अगेन यही वाली प्रॉब्लम आएगी यार कि हल्का फुल्का शैडो आ रहा है, कहीं पे वो एकदम रिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे अगर आप कांच की फोटो खींचते हो तो कांच में बहुत इजीली रिफ्लेक्शन आता है, स्पेशली जब आप फ्लैश के साथ फोटो खींचोगे, कि आप कांच के सामने जाओ, अभी इसके बाद करना एक बार, कांच के सामने जाओ और फ्लैश लगा के खींचना, रिफ्लेक्शन आएगा ना। सेम चीज है कि अगर आप धूप में खींचोगे, आपने एक आर्ट बनाई है उसके ऊपर लेट से आपने ऑयल पेंट किया है, तो रिफ्लेक्शन आएगा, अच्छी फोटो नहीं आएगी। द बेस्ट सॉल्यूशन इन दैट केस इज कि यार आप रूम के अंदर जाओ, खिड़की के पास जाओ, बट यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आनी चाहिए, लाइट स्टिल एनफ होगी। मतलब दिन के टाइम में अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है मतलब ये थोड़ी कि अंधेरा होगा, धूप मतलब रोशनी तो फिर भी होगी ना, तो रोशनी में जाओ फोटो खींचो, एंड दैट फोटो इफ यू क्लिक नियर विंडो विदाउट डायरेक्ट सनलाइट इन अ शेड सिचुएशन, दैट फोटो विल इन itself be 10 times better. Even if you don't edit anything, don't do anything, it will be a very good picture even from a smartphone. तो वेरी बेसिक थिंग यार, पे अटेंशन टू द लाइट। मतलब फोटोग्राफी एट द एंड ऑफ द डे क्या है, कैमरा है, उसके अंदर एक सेंसर होता है, वो लाइट कैप्चर करता है, यही तो फोटोग्राफी है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड हाउ यू यूटिलाइज लाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
Awesome. Yeah, now I think one or two things left. Basically now is कि एंगल ऑफ योर फोटोज, राइट? कि आप बोलते हैं कि यार थोड़ा कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोग जो ऐसे फ्रेंड्स की फोटो खींचते हैं कि यार थोड़ा नीचे से खींच यार मैं लंबा दिखूंगा, या फिर थोड़ा साइड से खींच यार मेरा ये वाला फेस का साइड अच्छा है। तो वो बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हो उस केस में, आप यार कैमरा का एंगल चेंज कर रहे हो, कि आप कैमरा का पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो जब भी आप किसी भी चीज की फोटो खींच रहे हो, कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो जो कि अभी किसी ने पूछा, या फिर आप किसी किसी चीज की फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, या फिर आप किसी दोस्त की फोटो खींच रहे हो, किसी पेट की फोटो खींच रहे हो, किसी चीज की भी फोटो खींच रहे हो, आप बिल्डिंग की भी फोटो खींच रहे हो यार फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैमरा का एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया, फोटो अपने आप में बहुत बदल जाएगी। जैसे कि मेरे को डॉग का एग्जाम्पल मिला था नेट पे कि यार किसी ने ऊपर से खड़े खड़े अपने पेट की फोटो खींच ली, ठीक है, फोटो आ गई, मतलब सेम बंदे ने थोड़ा सा नीचे झुक गया और उसने फिर फोटो खींची, तो अब आपको लगेगा कि यार हाँ यार फोटो का अपने आप में लुक बदल गया, कि भाई अब उस डॉग का फेस अच्छे से दिख रहा है, उसका फेस एक्चुअली ढंग से एक्सेंचुएट हो रहा है कि भाई क्या है उसका फेस, मतलब कैसे वो खड़ा कैसे है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो डॉग ज्यादा रॉयल है, कि भाई वो एकदम ऐसा खड़ा है स्टड की तरह है, जैसे भी खड़ा है। सेम चीज इस फोटो में, मतलब सेम डॉग नहीं है प्रोबेबली, बट स्टिल यू कैन सी कि यार ऊपर से खींचोगे तो हमेशा उसका फेस थोड़ा सा वियर्ड आएगा। अगर आप किसी ह्यूमन का भी फोटो खींचोगे ना, किसी दोस्त का, इंसान का फोटो खींचोगे थोड़ा ऊपर से ना, वो फोटो जनरली अच्छा नहीं आता। बट सेम फोटो अगर आप थोड़ा सा नीचे झुके खींचोगे ना, वो फोटो जनरली बहुत रॉयल लगता है। ऐसा लगता है कि यार एक तो इंसान लंबा है ज्यादा, वो लार्जर देन लाइफ लगता है। ये ना हीरो होता है ना मूवी में, कैसे नीचे से दिखाते हैं ऐसे और ऐसे से ऊपर करते हैं, सेम चीज कि उसके आप एक ऐसे एंगल से खींचो जिससे ऐसे वो लग रहा है कि यार वो कुछ ऊपर कुछ एक बड़ी चीज है। तो एंगल मतलब सेम चीज विद बिल्डिंग्स। मैंने एक पीछे फोटो डाली थी जो कि मैंने इस मोटे से तो नहीं डाली थी, बट वो काफी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है कि जो ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो भी, अब ये वाली फोटो मैंने काफी झुक के फुटपाथ से ली थी, तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम ऐसा पेड़ मेरे पास है और स्काई बहुत दूर है और पता नहीं कहीं, तो ऐसे एकदम झुक के से ली हुई है फोटो। सेम चीज इस फोटो में कि मैंने ये फोटो ली थी कैमरा एकदम सड़क के पास रख के, तो अब वो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बिल्डिंग कहीं तो दूर है, कुछ बड़ी सी बिल्डिंग है। तो अगर मैं सेम फोटो सीधा खड़े होके चलते चलते खड़े होके लेता तो वो फोटो नॉर्मली आती है जैसे सब लोग, क्योंकि आपका आई लेवल भी वही है ना। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, अगर आप कभी बिल्डिंग देखते हो कोई, तो आप ऊपर से ही देखते हो ना, आप कभी नीचे झुका के ऐसे ऐसे सड़क पे मुंह लगा के तो नहीं देखते हो ना। तो वो चीज है जो कैमरा कर सकता है आपके लिए, कि कैमरा के थ्रू आप वो एंगल देख सकते हो जो आप आईज से नहीं देख पा रहे हो। तो दैट इज व्हाई द फाइनल लेसन फ्रॉम दिस इज कि यार ट्राई न्यू एंगल्स, कि नए नए एंगल से खींचो। कि अगर आपको एक ही चीज की भी फोटो खींचनी है, तब भी आप ट्राई करो कि यार आप 4 एंगल से खींचो, 4 डिफरेंट एंगल से खींचोगे तो पक्का एक फोटो ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि यार ये फोटो मैंने कभी नहीं देखी, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव नेवर सीन। So that is why try different angles whenever clicking picture of anything, not just portraits, anything, even your art। कि अगर आपको एक फोटो, चलो एक फोटो तो आपको ऊपर से डालनी है जिसमें आर्ट क्लियरली दिखे, आप ऐसा कुछ तो साइड से डालो कि यार ऐसे एक पार्ट ऑफ द फोटो पे फोकस है। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बस ट्राई करो। मतलब इनिशियली तो इट विल बी लाइक यार 4 की जगह आप 8 या 10 एंगल से खींच लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा वाला अच्छा लगेगा। इवेंचुअली आपको समझ आने लग जाएगा कि यार ये 3 एंगल है, ये 3 एंगल खींचूंगा मेरा सॉर्टेड हो जाएगा। इनिशियली आप 10 खींचो, 12 एंगल से खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का चेंज करके खींचो, आपको समझ आएगा कि क्या चेंज हो रहा है आपकी फोटो में। ठीक है यार, ठीक है। नाउ वन वेरी स्मॉल ट्रिक दैट एवरीवन अराउंड अस हैज इन देयर फोन एंड फोन के कैमरा में इनबिल्ट है, व्हिच इज HDR। कुछ फोन्स में ऑटोमेटिकली होता है कि आप फोटो खींचते हो स्पेशली ऐसा थोड़ा डार्क में या थोड़ा ऐसा कि सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, तो आपको दिखता है HDR प्रोसेसिंग दिखता है कुछ कैमराज में। ठीक है, कुछ कैमराज में ऐसा HDR मोड होता है जिसमें वो ऑफ होता है और आपको ऑन करना पड़ता है। तो वो HDR क्या है? फुल फॉर्म है हाई डायनामिक रेंज। कुछ समझ नहीं आया फुल फॉर्म से, आई नो मेरे को भी नहीं आता। तो बेसिकली हाई डायनामिक रेंज अब क्या है, एग्जांपल से देखते हैं। देखो पहले तो इसने लिखा है पहले स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज, मतलब आपकी नॉर्मल फोटो, कोई HDR नहीं, HDR ऑफ है। मतलब अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपके कैमरा में सेटिंग है जिसमें ऑफ और ऑन। एक ऑटो होता है कि कैमरा ऑटोमेटिकली देख लेता है कि कब HDR करना है कब HDR नहीं करना है, वो भी हटा दो। ऑफ है और ऑन है, कि आप ऑफ कर दियो HDR, आप HDR ऑन कर दियो। ठीक है, अब HDR ऑफ मतलब जो नॉर्मल फोटो सब लोग खींचते हैं, तो वो फोटो इसने इस एग्जांपल में दिखाई है कि यार लेफ्ट साइड पे नॉर्मल फोटो है, अगर आप पहाड़ में जाके खींचोगे तो। अब उसने जो भी फोटो ले रहा था उसने क्या किया, उसने अपने कैमरा की सेटिंग में गया और उसने HDR ऑन कर दिया। अब HDR ऑन कर दिया का मतलब क्या है, तो HDR ऑन करने में कैमरा क्या करता है, ठीक है, हल्का सा समझा देता हूँ, अपने पास बहुत सारा टाइम नहीं है, थोड़ा समझा देता हूँ फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो HDR जब आप ऑन करते हो ना, तो कैमरा क्या करता है, कैमरा उस जो सीन है जिस चीज की आप फोटो खींच रहे हो उसको वो
ऐसा लेट से वो आधे सेकंड के लिए जो भी कुछ एक टाइम होता है उसके लिए वो उस चीज को, उस लाइट को रीड करता है और वो इंटरनली प्रोसेस करता है। अब वो इंटरनली प्रोसेस कैसे करता है उसका एक थोड़ा सा टेक्निकल सा चीज है कि वो टेक्निकली कैसे प्रोसेस करता है। अब मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी समझना। बट वो बेसिकली उसको जो आपकी, अब जैसे अगर आप विजुअली, अगर आप आंखों से देखो और आप ट्राई करो कि यार क्या डिफरेंस है, तो अब जैसे इस केस में यार अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना जो डार्क रीजन है वो इतना डार्क नहीं है। कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेट्स से ये रॉक्स के बीच का 2 पार्ट है, तो यहाँ पे वो थोड़ा ग्रेश सा लग रहा है। बट इस फोटो में वो एकदम डार्क ब्लैक है। जो आपकी फोटोज का ब्राइट रीजन है कि भाई यहाँ से सन निकल रहा है तो एकदम ब्राइट होना चाहिए, सन में तो लाइट होती है ना मैक्सिमम, तो ब्राइट होना चाहिए। इस फोटो में वो इतना ब्राइट नहीं है, बट इस फोटो में ब्राइट है वो बहुत ज्यादा। और आपका जो, तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि यार जो पार्ट ब्राइट होना चाहिए वो पार्ट ब्राइट है, और जो पार्ट डार्क होना चाहिए जहां पे लाइट नहीं आ रही है वो प्रॉपरली डार्क है। तो एचडीआर उसको बेसिकली प्रोसेस करता है जिससे ना वो फोटो ऐसा लगता है कि यार फोटो में जान है थोड़ी, मतलब अब मैं उसको फील में ऐसा बता पा रहा हूँ, उसका टेक्निकल टर्म है कि उसमें फोटो में कॉन्ट्रास्ट है, कि जो लाइट जहां पे एक्चुअली लाइट होनी चाहिए वहां पे एक्चुअली लाइट है, जो पार्ट ऑफ द फोटो एक्चुअली डार्क होना चाहिए वो पार्ट एक्चुअली डार्क है। ठीक है। अब अगर आप टेक्निकली नहीं भी समझना चाहते हो तो उससे आपकी फोटो में फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है। स्पेशली यार जब आप लैंडस्केप फोटो खींच रहे हो ना, कि अगर आप किसी पहाड़ पे गए हो और पहाड़ों पे फोटो खींच रहे हो, आपको बादलों की फोटो खींचनी है, और या फिर आपको लेट से थोड़ी सी कम लाइट में फोटो खींचनी है, कि लेट से जैसे अभी राजा ने बोलता कि मेरा टेबल का सेटअप है, तो जब मैं इस टेबल के सेटअप की फोटो खींचता हूँ तो टेबल के पीछे से लाइट आ रही है, पीछे और साइड में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो बेस्ट तरीका वो फोटो खींचने का है कि मैं एचडीआर में खींचूं, क्योंकि मेरी फोटो में लाइट कंसिस्टेंट नहीं है, लाइट इज नॉट यूनिफॉर्म इन माय पिक्चर। दैट इज वाई जब भी आप, तो बेसिकली इन जनरल यूज केस के लिए पहाड़ों के फोटो, लैंडस्केप फोटो, कि आप कहीं अच्छे से वादियों में घूमने गए हो वहां की फोटोज, बादल अच्छे लग रहे हैं आपको आज स्काई में, उस सब की फोटोज के लिए जनरली ट्राई कि आप एक फोटो एचडीआर में भी खींचो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि यार किसी ने घर की फोटो खींची है। अब क्या है कि यार यहाँ पे देखो बहुत सारा शैडो आ रहा है, यहाँ पे पीछे पीछे स्काई आ रहे हैं, बट स्काई में भी ऐसा ब्लू कलर दिख नहीं रहा है ढंग से, इसका घर थोड़ा डार्क लग रहा है, थोड़ा बैलेंस नहीं है फोटो में। बट सेम चीज जब उसने एचडीआर ऑन करके किया तो अब उसको दिख रहा है कि यार गार्डन भी सही से एकदम, गार्डन में एकदम कंसिस्टेंट लाइट है, गार्डन में लाइट दिख रही है प्रॉपर्ली, उसका घर भी एकदम अच्छे से लाइट, घर में भी लाइट दिख रही है, पीछे स्काई भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्काई एकदम फेड आउट हो रहा है, स्काई भी प्रॉपर्ली ब्लू दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं आपको। दिस इज व्हाट एचडीआर डज। यार फोन आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, देखो फोन अपने आप इंटेलिजेंटली प्रोसेस कर लेते हैं कि यार फोटो में क्या है और क्या दिखना चाहिए, उसके पास बहुत सारा डेटा है, तो उसके हिसाब से दे प्रोसेस एंड दे गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स इन एचडीआर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर अब आप बोलोगे कि यार मेरे को किसी की दोस्त की फोटो खींचने में एचडीआर यूज करूंगा तो शायद वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा वियर्ड दिखेगा, बट इन सब चीजों में एचडीआर वर्क्स दी बेस्ट। एंड मैंने पता है लोगों के, लोग अपने फोन से फोटो खींचते हैं, मैंने जनरली ये किया है, वो अपने फोन से फोटो खींचते नहीं आ रही थी फोटो, मैंने उनका फोन लिया, मैंने एचडीआर ऑन किया, मैंने फोटो खींचा, उनको वापस दिया, बोलते यार ये तूने मेरे फोन से कैसे कर दिया, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता कि यार ये भी एक सेटिंग है जिससे लोग कुछ कर सकते हैं एकदम नया। ठीक है। तो एचडीआर है, एक बार जाके फोन में इसके बाद हम लोग सेटिंग्स में जाके ट्राई करना कि यार एचडीआर मोड कहाँ है, मोस्ट ऑफ द फोन्स में होता है आजकल, देखना एचडीआर मोड और समझ, और एक बार ट्राई करना, मतलब पहली फोटो शायद खराब है, 3-4 फोटो तुम्हें समझ आ जाएगा बेसिकली जब तुम खींचोगे, और हर जगह ट्राई कर लेना शुरू में, तो कि यार तुम इंसान की फोटो खींच रहे हो तब भी एचडीआर से खींच लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कहाँ पे एचडीआर यूज करना है, कहाँ पे एचडीआर यूज नहीं करना है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि हर जगह एचडीआर खींच लेता था, जहाँ पे अच्छी आई, जहाँ पे नहीं आई तो ठीक है, नॉर्मल फोटो भी है मेरे पास, नॉर्मल फोटो भी खींच लेता था। तो दैट इज वाई इनिशियली डू अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल, यार सब कुछ ट्राई कर लो, क्या ही है, मतलब फोन की मेमोरी तो जा रही है, 2 MB की फोटो है, 2 MB की फोटो एक और खींच लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं पहले एक बार खत्म करता हूँ स्लाइड्स एंड देन फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस लेते हैं। यार अब एक लास्ट चीज इज कि यार एडिटिंग सब लोगों को होता है कि यार सीखना है, कुछ तो एडिट करते हैं, बट ना शुरू शुरू में सबको लगता है कि यार हाँ सब कुछ स्लाइडर घुमा देते हैं, हाँ सैचुरेशन बढ़ा दिया, क्लैरिटी बढ़ा दी, शार्प कर दी, इनिशियली वो बहुत बढ़िया लगता है, मैंने भी किया है, मैंने भी बहुत टाइम तक किया है, तो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया है, और सभी करते हैं, बट ट्राई करो कि वो नहीं करना है। जैसे जो ये जो फोटो इसमें दिख रहा होगा कि यार एकदम पेड़ ऐसे एकदम कुछ तो शार्प हो गए, ये पता नहीं इसमें क्या एकदम अलग ही वो शार्प लाइंस आ रही है वाटर में, और कुछ तो कलर एकदम बहुत डार्क सा कलर कर दिया, तो थोड़ी सी तो ओवर एडिटेड है, मतलब अभी इनिशियली इतना पता नहीं चलेगा कि यार ओवर एडिट क्या होता है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यार नहीं, सेकंड वाली फोटो थोड़ी ज्यादा नेचुरल है, सेकंड वाली फोटो भी एडिटेड है, बट इफ यू सी देन सेकंड फोटो इज अ लॉट मोर नेचुरल।
कि तुम्हें एक्चुअली स्काई की तरह दिख रहा है, पेड़ की तरह दिख रहे हैं, पानी की तरह दिख रहा है, लग रहा है कि पानी में पता नहीं कुछ तो बर्फ जम रही है, क्या हो गया। तो दैट इज नॉट द एम ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग का एम है कि यार तुम्हें उस चीज को सररियल दिखाना है, कि जो चीज है वो चीज और सुंदर दिखे, वो चीज और एडिटेड नहीं दिखे, कि पेड़ ही नहीं लग रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ और मैजिकल लगने चाहिए कि यार वाह क्या पेड़ है, ऐसा लगना चाहिए कि ये पेड़ है, ये नहीं होना चाहिए कभी क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड ओवर एडिटिंग, जिसमें तुम्हारा फोटो खराब हो रहा है। ठीक है, और यार मैं एडिटिंग के लिए क्या यूज करता हूँ नाउ, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा नहीं था तो मतलब मैं एडिटिंग तो नहीं सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली, बट बेसिक एडिटिंग आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद स्नैपसीड। मतलब स्नैपसीड इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एप्स। गूगल की ऐप है एंड फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर पे iOS यूज करते हैं तो iOS स्टोर पे भी अवेलेबल होती है, गूगल के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। वेरी इजी टू यूज ऐप, बहुत इजी है। स्लाइडर्स क्या करते हैं एग्जैक्टली इन डिटेल आई वुड कवर probably in the future classes. I'll tell you more about that abhi. But Snapseed is a very first basic app to start with. Lightroom मोबाइल पे भी आता है, Adobe बनाता है, Lightroom का एक मोबाइल ऐप होता है। 100% फ्री नहीं है, बट 80 to 90% ऑफ इट्स फीचर्स आर फ्री फीचर्स हैं, तो काफी इजीली यूज कर सकते हैं और सीख सकते हो। सेटिंग सेम रहती है स्नैपसीड जैसे, बस थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हैं और थोड़ी बहुत नई चीजें डाली हुई है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद यार थोड़ी बहुत एडवांस एडिटिंग के लिए कुछ लोग एप्स यूज करते हैं, विच इज लेंस डिस्टॉर्शन या फोटोशॉप का नाम तो सुना ही होगा कि यार कुछ तो नकली डाला है फोटो में, फोटोशॉप किया है। तो दीज आर सम एडवांस एडिटिंग एप्स जो कि प्रोबेबली कुछ लोग यूज करते हैं। लेंस डिस्टॉर्शन फोन पे अवेलेबल है, तो लेंस डिस्टॉर्शन में से ऐसे आप ऐसे लाइट फ्लेयर या कुछ तो डाल सकते हैं, रेन डालनी है फोटो में कि बारिश आ रही है तो ऐसा इफेक्ट डाल सकते हो। फोटोशॉप जनरली लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज करते हैं लोग, तो दिस इज समथिंग जो कि एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि स्टार्ट विद स्नैपसीड जिसने नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्नैपसीड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया, स्टार्ट विद लाइटरूम भी काफी बढ़िया ऐप है इन इटसेल्फ फॉर एडिटिंग। यार नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट लिटिल कि क्या है मतलब फोटोग्राफी का क्या स्कोप है बहुत जल्दी से, कि यार आई हैव डन अ लॉट ऑफ पेड प्रोजेक्ट्स एज वेल, कि आई हैव शॉट फॉर दी स्टार्टअप्स एंड देन यू विल सी कि अगेन कुछ फोटोज में यू विल सी कि दीस रूल्स आर बीइंग अप्लाइड जो मैंने बताए हैं, कि नाउ इफ यू ड्रॉ लाइंस हियर यू विल सी कि उस बंदे का जो फेस है वो उसी डॉट पे आ रहा है जहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स की डॉट मिलता है, मैंने तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सेम विद दिस गाय कि उसका डॉट पे तो नहीं आ रहा है बट उसका लाइन पे तो आ ही रहा है। Same with this guy, same with this guy. There's a lot of things that actually, you follow even when you are doing these shoots, paid projects, जो भी कर रहे हो, जो basic rules हैं, वो हमेशा same ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते. These are the rules that help you with everything that you do in photography. मैंने पोर्ट्रेट्स की बहुत ज्यादा बात की यार, मैं पोर्ट्रेट्स मतलब इज समथिंग विच आई शूट अ लॉट, स्पेशली लास्ट 2 साल में तो मैंने बहुत ज्यादा खींचे हैं। आई डू लाइफस्टाइल शूट्स, अगेन पोर्ट्रेट्स लाइफस्टाइल्स जो भी है, एंड देन मैं थोड़े बहुत सेल्फ पोर्ट्रेट्स, कुछ तो क्रिएटिव चीजें कुछ ट्राई करते रहने चाहिए खुद के लिए भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हॉबी, इट्स नॉट माई प्रोफेशन की मैं प्रोफेशनली फोटोग्राफी हूँ। मैंने बताया था कि आई हैव अ जॉब फुल टाइम जो भी है, तो कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स खुद के लिए भी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ नई चीजें शायद सीख सकते हैं जो कि कहीं जाके यार कहीं काम नहीं भी आएंगी। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि यार मैंने कुछ क्रिएटिव बनाया है, कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग जो कि लोग को देख के लग रहा है कि अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है। कि अब जैसे चिप्स के पैकेट में कैमरा कैसे आ गया, तो दीज आर समथिंग जो कि पीपल फिर ऐसा सोचते हैं कि मतलब, एंड यू फील समथिंग कि यार मैंने कुछ क्रिएट किया है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए तो वही मोटिवेशन था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, इतनी अच्छी फोटोज नहीं थी, बहुत खराब फोटोज थी इनिशियली, मैंने शुरू में दिखाई थी जो फोटोज मैंने स्टार्ट की थी, बट स्टिल उस पर भी अप्रिसिएशन मिलता था थोड़ा बहुत, तो वही एक मोटिवेशन है आगे बढ़ने का कि यार और सीखते हैं, फिर ऐसी चीजें बनाते हैं, फिर इस पर और अप्रिसिएशन मिलता है, एंड देन यू थिंक यार अब और क्या नया कर सकते हैं जिससे देख के लोगों को लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही सुंदर है, या तो क्या सोच लिया, तो ऐसा कुछ है। या जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद क्वेश्चंस is ki I'm planning to do a course, a 4 weeks course with these folks. I'll take 2 classes per week. I'll cover ki in depth ki yaar how can you use your phone better to click pictures. There was some doubts on कि यार मैनुअल मोड और ये सब कैसे यूज करते हैं, तो फोन में भी आजकल सेटिंग्स हैं कि यू नो शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर, जो भी चीजें हैं आप मैनुअली कैमरा में सेट कर सकते हो, सो दैट लाइट जो है फोन के कैमरा में जितनी लाइट कैप्चर होती है दैट यू आर कंट्रोलिंग मैनुअली। एडिटिंग के बेसिक्स आई ट्राई टू टीच स्नैपसीड या लाइटरूम में कैसे एडिट करते हैं चीजें, एंड देन थोड़े बहुत एडवांस्ड, बेसिकली एडिटिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो आई ट्राई टू कवर
start from the basics, cover a little advanced topics of it, and कैसे you can click pictures that will help your editing. क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी खींच लो और उसको कुछ भी एडिट कर दोगे, आपको एक तरीके से खींचना है जिससे आप उसको तरीके से एडिट कर सको. I'll try to cover those things as well. So if you're interested, there'll be a feedback form जो WhatsApp group पे था, एक बार fill that, let the folks know, and then we'll plan the dates for the course कि course कब करना है. And yeah, yep. Great Kritagya. So thanks a lot for this session. I mean, to be honest, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बाहर जाके बस फोटोज खींचना स्टार्ट करना है and start implementing all the basics जो like you know जो भी इस क्लास में कवर हुए. So it was really great. Now questions पे open करते हैं. So before we open for questions, एक बहुत ही like एक दो questions बहुत ही आ रहे थे कि यार Instagram पे अच्छे फोटोज कैसे अपलोड करें. So if you could speak about that, right? Because I feel वो बहुत ही common चीज होगी, right, for people to know, and उनको like वो लोग काफी curious होंगे to know about this. Sure. So yeah, if you could speak a bit on that. Yeah, definitely. Yeah, so Instagram पे I think one of the major reasons जो कि क्वेश्चन आता है क्योंकि Instagram अपने आप में फोटोज को कंप्रेस बहुत ज्यादा करता है. तो मतलब लेट्स से आप एक 10 MB की फोटो अपलोड कर रहे हो तो Instagram 10 MB की फोटो तो नहीं रख सकता, वो कुछ तो कंप्रेस करता है उसको, वो 400 KB की बना देता है, which is कुछ तो कितना टाइम्स हो गया ये, बहुत सारे टाइम्स, 20 टाइम्स कंप्रेस कर रहा है वो उस फोटो को, 10 MB की फोटो को, और 10 MB से ज्यादा की भी फोटो अपलोड करते हैं लोग. तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि यार क्वालिटी लूज नहीं हो जब ये फोटो अपलोड कर रहे हो. देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई फॉलो. मतलब मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ, मतलब वो थोड़ा सा एफर्ट तो है ही, बट मतलब दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू. फर्स्ट थिंग इज कि यार जब भी आप फोटो एडिट कर रहे हो ना, तो देयर इज अ स्पेशली जो मैंने एडिटिंग एप्स बताई कि यार यू नो यूज लाइटरूम, कहां गया, ओके इंटरेस्टिंग, हाँ, तो लाइटरूम, राइट, तो लाइटरूम हैज अ फीचर जहां पे यू कैन एक्चुअली शार्पन योर फोटोज. अब शार्पनिंग क्या होता है वो डिटेल में आई टेल लेटर ऑन की शार्पनिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, बट ऊपर से ये है कि यार आपकी फोटो में जो आपकी, जैसे लेट्स से मैं हूँ, तब मेरे फेस का कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ एक लाइन जा रही है जो कि डिफाइन कर रही है मेरे बाल कहाँ है. तो इफ इंक्रीज शार्पनिंग, तो जो एजेस हैं हर चीज के, कि भाई ये मेरा ये कंधे का एज है, मेरे बालों के एज है, मेरा फेस का एज है, ये सब ज्यादा ऑब्जर्वेबल हो जाता है. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि आप अपनी शार्पनिंग बढ़ाओ फोटोज की थोड़ी सी ज्यादा, सो दैट जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो तो वो अगर उसको कंप्रेस भी करेगा तो भी आपकी फोटोज इतनी कम शार्प, मतलब उनकी शार्पनिंग बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगी. फर्स्ट वेरी स्मॉल ट्रिक. यार सेकंड ट्रिक इज कि जो फोटो का एस्पेक्ट रेशियो ना, जो कि होता है पिक्सल्स में, कि जैसे एक HD वीडियो जो होती है 1920 by 1080, वैसे ही व्हेन यू आर अपलोडिंग अ पिक्चर जो कि स्क्वायर है, तो ट्राई अपलोडिंग 1080 by 1080 पिक्सल्स. ठीक है, आई विल पुट इट इन द चैट एक बार, पुट वेट, ठीक है. तो इफ यू आर अपलोडिंग अ स्क्वायर पिक्चर, इट शुड बी इन 1080 by 1080. अब इंस्टाग्राम में यार 4:5 के रेशियो में भी जाती है, जो होता है 1080 by 1350. अब आप जिस भी रेशियो में अपलोड कर रहे हो ना, वो रेशियो एक बार गूगल कर लो और आपको बता देगा कि यार बेस्ट क्या साइज है उस फोटो को अपलोड करने का, एंड देन यू कैन कंप्रेस योर फोटो इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. अब मैं उसको जनरली फोटोशॉप पे करता हूँ. देयर आर सम अदर गुड एप्स एज वेल. फोन के लिए एक बार आई हैव टू कंफर्म एंड आई विल पुट समवेयर इन द ग्रुप, एक बार रिमाइंड कर देना या जो भी है, आई विल पुट समवेयर. बट दिस इज द वे कि यू हैव टू कंप्रेस योर पिक्चर बिफोर अपलोडिंग इट ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप उसको स्टोरी में अपलोड कर रहे हो, then upload it in the format 1080 by 1920, which is 16:9, but वीडियो के फॉर्मेट से उल्टा, यार 1080 by 1960 जो भी आपके फोन का फॉर्मेट होता है, उससे इंस्टाग्राम पे सबसे कम कंप्रेशन होता है, एंड यू गेट द बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम. तो या दैट इज इट. Great Kritagya. So any other questions? Use my where can I find a good platform where I can use my photography? यार गुड प्लेटफॉर्म एज इन थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया. लाइक इफ यू वांट टू जस्ट शो योर पिक्चर्स टू द वर्ल्ड, आई थिंक इंस्टाग्राम इज अ ग्रेट प्लेस कि यू नो टू एक्चुअली शोकेस योर पिक्चर्स टू द वर्ल्ड, या जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट होगा इंस्टाग्राम पे कि आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं. बट इवेंचुअली यार मतलब ये कि इफ यू कीप अपलोडिंग पिक्चर्स और लोगों को पसंद आ रही है तो अपने आप यू नो यू विल ग्रो एंड मोर पीपल विल स्टार्ट व्यूइंग योर स्टफ. How to upload on Instagram without losing quality, ये तो हो गया. How did you feel when Peter McKinnon featured your photo? यार तो I don't know कि if everyone knows Peter McKinnon, वो एक यूट्यूबर है आई थिंक, who has कुछ तो 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी.
तो वन ऑफ माई पिक्चर्स, ऐसा कुछ एक चैलेंज था जो उसने होस्ट किया था जिसमें ही वाज फीचरिंग पिक्चर्स। तो उसने वो फोटो ऐसा फीचर किया था एक पर्टिकुलर थीम के अंडर, जो कि काफी ब्रिलियंट था। मतलब ऐसा मेरे को तो पहले, एंड ही इज अ यूट्यूबर फ्रॉम कनाडा, तो मेरे को तो बिलीव ही नहीं होता कि वो मेरी फोटो एक्चुअली फीचर हो रही है उस प्लेटफॉर्म पे। बट देन इट्स वेरी मोटिवेटिंग कि उसके बाद मैंने और 4-5 चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया, ऑल्दो मैं नहीं जीता, बट देन इट वाज वेरी गुड क्रिएटिंग दैट कंटेंट। एंड वही प्रैक्टिस है यार, कि मतलब अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, अलग अलग चीजों ट्राई कर रहे हो तुम लोग। तो हाँ मतलब एनी That's अदर great. क्वेश्चंस? आई थिंक चैट के अलावा भी अगर किसी को पूछना है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी। Right, guys. You can open your mic and ask any question. Someone is asking कि motion pics कैसे खींचते हैं? Like butterfly motion pics in phone, like butterfly in less time. How motion pics of butterfly समझ नहीं आया सर। एक बार ऐश्वर्या एक बार आप या तो माइक अनम्यूट करके आप पूछ लो अगर, तो समझ नहीं आया एक्चुअली मेरे क्वेश्चन। Yeah, right. How to click photos of paintings? यार Someone is तुषार, asking. so Tushar. basically I have told a little in brief कि you know कि whenever you are clicking pictures, मतलब whenever you are clicking pictures of art या paintings ना, तो never click in direct sunlight, try clicking indoors, but दिन के time जब actually light sufficient हो। डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए कभी भी आपकी पेंटिंग्स पे या आर्ट पे, बट रूम में एटलीस्ट एनफ लाइट होनी चाहिए। जनरली ऐसे विंडोज के पास या आपके घर के अंदर विंडोज होती है तो उसके पास लाइट बहुत सारी होती है, बट डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ रही होती है। ट्राई कीपिंग इट ऑन अ फ्लैट ग्राउंड, जैसे जमीन पे रख दो या कोई एक अखबार रख के उस पर रख लो, कैसे भी रख लो, बट फ्लैट ग्राउंड पे रखो एंड क्लिक अ पिक्चर फ्रॉम योर फोन ऊपर से। डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगा तो कभी भी तुम्हारी पेंटिंग में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और कभी भी लाइट भी इनएडिक्वेट नहीं होगी, कभी ऐसे रैंडम शैडोज नहीं पड़ेंगे, कुछ पैटर्न्स नहीं बनेंगे, but your photos of paintings will be you know bright enough कि लोग देख समझ पाए कि यार पेंटिंग में क्या हो रहा है। तो हाँ, how can I click butterfly in slow motion? Okay, I think ऐश्वर्या ने कंफर्म क्लैरिफाई किया बटरफ्लाई को क्विकली इजीली, इट इज नॉट स्टेबल। यार तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। बटरफ्लाई का मैं भी आज तक नहीं खींच पाया हूँ सही से, पता है ऑनेस्टली। फोन से खींचना इज पॉसिबल, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, आई हैव सीन पीपल डू इट। वन वे इज की टू हैव पेशेंस, कि यार कोई ऐसी बटरफ्लाई ढूंढ लो जो उड़े ना तुम्हें देखते ही, which is definitely not that easy, but कोई तो होगी जो कि थोड़ी ज्यादा स्टेबल होगी कि वो नहीं उड़ जा रही होगी तुरंत। अनदर थिंग इज कि यार कैमरा में आजकल जूम आने लगा है, तो देयर इज अ 2x जूम या कुछ कैमरा में 5x जूम है, तो जूम यूज करो, थोड़ा सा दूर से खींचो। एंड यार जब वो थोड़ा स्टेबल हो तब खींचना थोड़ा सा बेटर रहेगा, तो थोड़ा कि जब वो रुकी हुई है या ऐसे हवा में उड़ते हुए खींचना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब वो तो अपने आप में ऐसे है कि यार 50-100 फोटो खींचोगे तब जाके शायद एक आए जिसमें बटरफ्लाई सही से दिख रही हो उड़ते हुए, बट वो बैठी हुई है तो भी मतलब ऐसे थोड़े एनफ नंबर ऑफ ट्राइज तो लगेंगे। ठीक है। देव का एक क्वेश्चन था व्हिच आई वांटेड टू एड्रेस कि देयर आर लॉट ऑफ ग्रिड्स इन कैमरा ऐप, हाउ कैन वी यूज इट? यार तो बेसिकली देव ग्रिड जो मैंने बताए थे ना अभी, जिसमें देयर आर 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ 3x3 ग्रिड। ठीक है, क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो जनरली 3x3 ग्रिड यूज करते हैं यार लोग। मतलब अगर आपको कुछ और चीज के लिए यूज करना है कि लेट्स से अगर आपको सेंटर में रखना है ऑब्जेक्ट, तो यू कैन यूज अ 2x2 ग्रिड एज वेल, या फिर मतलब काफी सारे ग्रिड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे गोल्डन रेशियो एज वेल जो मैंने आज कवर नहीं किया, बट जनरली आई रिकमेंड पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम अ 3x3 ग्रिड ओनली, जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था। ठीक है। Right. Abhijit is asking how to click light trail effect photos. यार इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट एक्चुअली कि मैं अभी 1 मिनट में बता दूं, बट बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड मैनुअल मोड इन योर कैमरा या फोन, मतलब फोन में भी आजकल होता है। एंड मतलब तो बेसिकली यू सेट कि यार 2 सेकंड तक 2 सेकंड्स तक वो फोटो खींचता रहे, एंड मतलब बेसिकली तो वो 2 सेकंड तक वो लाइट कैप्चर कर रहा है, कि जो सेंसर है कैमरा का, जो भी लाइट पड़ रही है आपके फोन के कैमरा पे, वो सारी लाइट वो कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है और वो एक फोटो बना के देता है आपको। तो अगर एक कार निकल के जाएगी और उसकी लाइट्स जल रही हैं, तो वो लाइट ऐसा लगेगा कि लाइट पूरी फोटो में मूव कर रही है, एंड दैट इज हाउ लाइट ट्रेल्स आर फॉर्म। मतलब मैंने बहुत ज्यादा ब्रीफ में बताया, बट अगर आप कैमरा का फोन का मैनुअल मोड समझते हो, विच आई माइट कवर इन फ्यूचर क्लासेस, तो तब इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस कि क्या मैं बोल रहा हूँ। बट ब्रीफ में मैनुअल मोड पे हाई मतलब शटर स्पीड पे 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आप फोटो खींचते रहो, एक ही फोटो, मल्टीपल फोटो नहीं, एक ही फोटो 4 सेकंड तक खींचो, 5 सेकंड तक खींचो, तो देन एवरीथिंग इज जो की फोटो में हो रहा है दैट बिकम्स अ पिक्चर, वन पिक्चर। तो या Aditya is asking
what made you switch to Sony A7? Cool. यार तो या तो as I told ना कि I invested in my first camera जो मैंने दिखाया था, that was a relatively cheaper camera, 40,000 के अंडर mostly. But I switched to a Sony which is a lot more professional camera because of the fact कि मैं paid shoots करता हूँ, I do freelancing, and you know now जो investment है मेरा कैमरा में, that is earning me money. तो नाउ इट्स नॉट एन एक्सपेंस जो कि मैं अपनी मतलब हॉबी में एक्सपेंस, तो मतलब मेरी हॉबी तो है ही स्टिल वो, बट स्टिल सिंस इट्स अर्निंग मी सम मनी तो इट मेक्स सेंस फॉर मी टू इन्वेस्ट दैट हाई अमाउंट. जितने का भी सोनी A7 आता है, एक बार देख लेना सब लोग जाके, मैं नहीं बता रहा, तो जितने का भी वो आता है मतलब इट्स अबव 1 लाख फॉर श्योर. तो वो अमाउंट मेक सेंस फॉर मी बिकॉज आई एम एक्चुअली अर्निंग मनी फ्रॉम इट नाउ. It's not like I'm putting 1 lakh in my hobby without knowing कि मुझे वो करना है नहीं करना है. अब it's been more than 4 years since I've been taking pictures and I'm sure कि मैं छोड़ तो नहीं रहा हूँ photography anytime soon, and I'm earning from it as well. So that is why मतलब I think it made sense for me to invest. Great कृतज्ञ. So आखिरी क्वेश्चन लेते हैं एक. So you can scroll around कृतज्ञ chat में and you feel के जो important है you can answer that and then we'll close the session. All right. Awesome. I think apart from chat अगर किसी और का क्वेश्चन है तो you can ask मतलब on the call itself as well. या फिर you guys can ping me, the admins of the group, me or Raja, right, and we will try to answer your questions. Guys do fill the feedback form. Right. And Insta पे guys हमारा पेज फॉलो कर देना, वहाँ पे हम डालते रहते हैं अगली क्लास क्या है, who is teaching and everything, and please spread this group to your friends, family, जिनको भी कुछ ना कुछ हॉबी करना है or they want to explore anything, right? Yeah, Kritagya, so you want to answer one last question? Yes. While clicking pictures, some using flash, some letters on the thing covered by flash. However, yes, Aishwarya is asking कि while clicking pictures via flash, so some things are covered in flashlight. How to avoid that? And एक और question है about editing की contrast structure क्या होता है. मैं last 2 question लूँगा very quickly. यार first thing is कि flash में if you are मतलब let's say अगर आप phone का flash use कर रहे हो, तो phone का flash भी उसी direction में जिस direction में आप photo खींच रहे हो. तो I would never recommend कि यार flash use करो directly. मतलब there's a way to use flash की let's say कि आप like how I showed you ना कि I have a setup. तो इस केस में जो मेरी लाइट है वो साइड से आ रही है कि it's not कि जिस डायरेक्शन से मेरा कैमरा है कैमरा, हाँ जिस डायरेक्शन में मेरा कैमरा उस डायरेक्शन से मेरा लाइट नहीं आ रहा है. It's from a little different side और वो बहुत बड़ा लाइट है. अगर आप फ्लैश यूज कर रहे हो एंड वो छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली कैमरा के साथ आ रहा है, जैसे कैमरा के ऊपर फ्लैश होता है, वो मैं कभी यूज नहीं करता बिकॉज उससे वही प्रॉब्लम होती है कि इट क्रिएट्स रिफ्लेक्शन ऑन योर फोटोज कि यार फोटोज पे ऐसा कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट होगा, कहीं पे बिल्कुल लाइट नहीं होगा, क्योंकि दैट फ्लैश इज नॉट यूनिफॉर्म. तो जो फोन का फ्लैश होता है नेवर रिकमेंड. कैमरा के ऊपर जो फ्लैश होता है आई नेवर रिकमेंड. अगर फ्लैश यूज मतलब जनरली अवॉइड यूजिंग फ्लैश ऑलवेज. अगर आपको फ्लैश यूज करना है एंड यू आर यूजिंग एन एक्सटर्नल फ्लैश, जो कि मतलब अभी तो बिल्कुल आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू बाय एक्सटर्नल फ्लैश टू यूज ये, यूज सम लाइट्स की जैसे ट्यूब लाइट है या प्रोबेबली ये यूज कर लिया, या फिर यू नो कोई एक बल्ब है कुछ ऐसा ओपन बल्ब है या कुछ एक ओपन लाइट है वो यूज कर ली, बट आई डोंट जनरली रिकमेंड फ्लैश फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स. सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आंसर यार, किसी ने 2-3 बार पूछा था कि व्हाट अबाउट एडिटिंग टर्म्स लाइक कॉन्ट्रास्ट एम्बिएंट स्ट्रक्चर. यार I don't think आज I'll be मतलब basically it's a part of editing वाला exercise की, you know what is editing कि editing में basically क्या मतलब बहुत सारे sliders देखे होंगे लोगों ने, तो कौन सा स्लाइडर क्या करता है वो अपने आप में एक काफी बड़ा डिस्कशन है जो कि 1 घंटा ले जाएगा probably. तो I don't think I can answer right away, but this is something I think probably we can cover in future classes. So yeah, mostly और in the personal classes जो कृतज्ञ organize कर रहा है, so वहाँ पे in depth sessions हो गए. All right, guys. So I think show some love to Kritagya. I think, come on, man. This was a really great class, Kritagya. I think hats off. Thanks a lot, Kritagya, for this class. Right, it was really helpful. And yeah, so Instagram पे follow कर देना, guys, हमें. And अगले हफ्ते we have 4 classes, right? Yoga पे है, sketching पे है, and 2 classes are on dance, जहाँ पे hip hop dance होगा and